Hello and welcome to learning session number 6 of chapter number 5, which is towards green energy. Okay, so far in this chapter, what all we have seen energy, we have seen the definition of energy, the capacity of a body to do work, we have seen generation of electrical energy, which is using Michael Faraday's law of electromagnetic induction. It says that if the magnetic field around a conductor changes, then there will be a potential difference induced across that conductor. Next, we have seen thermal power plants, nuclear power plants, natural gas power plants, and what are the problems and advantages associated with each and every type, right? Then we have seen green energy. What is green energy? Green energy is something which does not cause harm to the environment and it can be replenished again and again. Okay. And lastly, in the last learning session, we had seen hydroelectric power plants and their problems. So in today's learning session, we're going to see electricity generation using wind energy. Okay. So these are the words we're going to learn today. First word is shaft and second word is offshore. Shaft and offshore. Make sure you are making sentences after writing the meanings of these words at the end of the learning session. Okay. So before we actually start learning about electricity generation from wind energy, I wanted to do something which is related to our last learning session, okay, which is learning session on hydroelectricity. So there is a concept known as lake tapping, okay, lake tapping. And what I wanted to do is I wanted to pause the video over here, find out about it on Google. You're using Google Classroom, you're using WhatsApp, you're using YouTube, so you can find the meaning of this process, which is lake tapping, on Google, and write 2 lines about it explaining what it is in your notebooks in your own words. Okay, so take about 5 to 10 minutes to do this. Pause the video here, go and search lake tapping, try to understand what it means, and then write it in your notebook what is the meaning of it. Okay, you can write as little as 2 points, or if you want you can write as much as 1 page if you like to. Okay, but do this right now. Pause the video and note it in your notebook. Okay, so I am trusting you all will do this by yourself. So I'm going to move ahead. So electricity generation using wind energy is done through windmills. Okay, so this is known as windmills. So all must have seen this here and there in photos, in movies, in videos, etc. Right? So this is known as a windmill. Okay. So now let us see the schematic diagram of a windmill. So this is the schematic diagram of the windmill. Okay. So air is coming from the left hand side to the right hand side, and here you have here you have blades. Okay. So this in the previous slide we saw the video of a windmill, right? So वहाँ पे 3 blades थे. So इस schematic में they are only showing 2 blades. So this is your first blade and this is your second blade. और wind आने के वजह से वो कैसा घूमने वाला है? ऐसे ऐसे घूमने वाला. Okay, it is going to rotate this way, anti-clockwise. Okay, then you can see a shaft. So what does this is one of the words we are going to learn today, right? So shaft is nothing but a narrow and long पार्ट ऑफ अ मशीन. ओके, सो एक पूरा का पूरा मशीन की तरह अगर तुम लोग इसको देख रहे हो तो एक लंबा सा और पतला सा एक रॉड की तरह होगा, उसको शाफ्ट बोलते हो. किसी भी मशीन में हो सकता है, हर मशीन में कोई ना कोई लंबा और पतला पार्ट होता है, उसको हम लोग शाफ्ट बोल सकते हैं. ओके, सो देयर इज अ शाफ्ट व्हिच इज कनेक्टेड टू द ब्लेड्स एंड द शाफ्ट गोज इनसाइड अ गियर बॉक्स. गियर बॉक्स का क्या काम होता है? सो बेसिकली विंड का स्पीड कितना भी होने दो, तुम्हारे ब्लेड्स का जो रोटेशन का स्पीड है वो मैक्सिमम होना चाहिए, राइट? सो अगर विंड बहुत कम है तो स्पीड कम होगा, विंड बहुत ज्यादा है, विंड बहुत फास्ट आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ द एयर इज वेरी हाई, वेलोसिटी ऑफ द विंड इज वेरी हाई, देन इट इज गोइंग टू रोटेट वेरी फास्ट, राइट? सो कभी कभी फास्ट रोटेट कर रहा है, कभी कभी स्लो रोटेट कर रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव गियर बॉक्स. ओके, सो गियर बॉक्स विल ट्राई टू keep the speed of rotation maximum. That's the purpose of a gearbox. Okay, then the gearbox again is connected using a shaft to a generator. And next we know, right, generator से क्या होता है? Once it is because of the rotating because of the rotating blades, यहाँ पे blades ही turbine है. Okay, blades ही यहाँ पे turbine है, क्योंकि यहाँ पे wind directly इस turbine को घुमा रहा है. So whenever the turbine start rotating, the magnet in the generator will start rotating and it is going to create electricity. Okay, so generator में electricity create होने वाली है.
here they have written bearing. Okay, BERING. bearing is nothing but ये छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जिससे फ्रिक्शन एकदम कम हो जाए, वो रोटेट होने वाला है, राइट? अगर तुम लोग ने देखा विंड मिल हमेशा ऐसे एक ही डायरेक्शन में नहीं होता। अगर समझो विंड यहाँ से आ रहा है तो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, विंड यहाँ से आ रहा है तो वापस डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो जहां से विंड आ रहा है थोड़ा सा डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। सो वो जो रोटेशन हो रहा है उसमें कम से कम फ्रिक्शन होना चाहिए, इसलिए छोटे छोटे बॉल्स डाल देता है। तुम लोग ने वो साइकिल के हैंडल में भी देखा होगा, अगर साइकिल का हैंडल कभी खोल के देखा होगा तो वहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स होते हैं। उससे क्या होता है, फ्रिक्शन जो है रोटेट करने में वो सबसे कम लगेगा। ओके, सो दिस इज योर स्कीमेटिक ऑफ अ windmill. Okay, let us move ahead. What are the different stages for electricity generation in a wind energy? That's your first flow chart. So first, wind with required velocity, enough speed के साथ wind आना चाहिए। Next, wind turbine with large fins, जितने लंबे तुम्हारे fins होंगे या फिर तुम्हारे जितने लंबे blades होंगे उतना ज्यादा एयर उसको हिट कर पाएगा, और जितना ज्यादा एयर उसको हिट कर पाएगा उतना वो ज्यादा अच्छे से रोटेट हो पाएगा। ओके, सो विंड टर्बाइन यू नीड विथ लार्ज फिन्स, फिन्स यानी ब्लेड्स। नेक्स्ट, इट इज गोइंग टू इट इज अटैच्ड टू द जनरेटर, राइट? सो बिकॉज ऑफ द विंड generator is going to generate electrical energy. So these are the various stages in electric generator using wind energy. Okay, next, like always, the next part is always transformation of energy in an electrical generator using wind energy. So energy कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में? So first, kinetic energy of wind. wind जब आ रहा है उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है, जिस भी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होती है we say it has kinetic energy. So wind के पास kinetic energy है, वो kinetic energy किस में कन्वर्ट हो जाए? wind की वजह से टर्बाइंस रोटेट हो जाए, so that is converted into kinetic energy of turbine. And once the turbine starts rotating, that kinetic energy of the turbine is converted into electrical energy using generator. Okay, so these are the various ways in which energy is being transformed from one form to the other form in various stages. Okay, next, I've given you all a practice question. The practice question is, explain with diagram step by step energy conversion in an electric generator using wind energy. Okay, so basically ये जो flow chart है उसके ऊपर based है ये question. Okay, so to help you all with this question, again I have given you all pointers. So explain with diagram बोला, right? So पहले कौन सा diagram तुम लोग draw करोगे? ये flow chart वैसे का वैसे draw कर लो. So this itself is your diagram. Okay, and अब यहाँ पे कितने ट्रांसफॉर्मेशन है? यहाँ पे एक पहला कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड से काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइन. सो पहला हेडिंग ये डाल दो, एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी इन विंड टू काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन. ये हेडिंग डाल दो और उसको एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर दो. नेक्स्ट, कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है या फिर फॉर्म चेंज कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. सो वापस टाइटल क्या डालोगे? कन्वर्जन फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसको एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर दो. दैट विल कंप्लीट योर आंसर. ओके, सो मेक श्योर यू आर राइटिंग दिस आंसर इन योर notebook, okay, as a practice question. We are going to move ahead. Next, we are seeing reasons why use of wind energy is limited. इतना wide, इतना large scale हम लोग इसको use नहीं कर पाते हैं. उसके reasons क्या है? Okay, so first point, wind turbines with capacity right from less than 1 kilowatt, 1 kilowatt से कम energy वाला से लेके 7 megawatts, 7 megawatts यानी 7,000 kilowatts. Can either say 7 megawatts or you can say 7,000 kilowatts. So 1 kilowatt से कम का भी wind turbine आता है और 7,000 kilowatts का भी wind turbine आता है. तो इतना बड़ा रेंज है. तुम लोग अगर कम एनर्जी बनाना है तो छोटा वाला ले सकते हो, अगर तुम लोग को बड़ा एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तो तुम लोग बड़ा वाला wind turbine ले सकते हो. ओके, सो ये रेंज है 1 kilowatt to 7,000 kilowatt कैपेसिटी का wind turbines are available commercially. commercially available है यानी मार्केट में अवेलेबल है. if you want you can go and buy them. okay, और जितना ज्यादा एनर्जी का कैपेसिटी होगा उस विंड मिल का उतना ज्यादा महंगा होगा, obviously, isn't it? next, depending on the wind velocity available at the site of installation, यानी जहां पे इंस्टॉल करना है विंड टर्बाइन को, वहां पे विंड का कितना वेलोसिटी है, कितना स्पीड से वहां पे हवा आती है, उस पर डिपेंड करता है
विंड टर्बाइन विद स्पेसिफिक कैपेसिटी सिलेक्टेड, उसके हिसाब से वो लोग किस कैपेसिटी का विंड टर्बाइन वहां पे लगाना है ये डिसाइड करेंगे। ओके, किस कैपेसिटी का विंड टर्बाइन वहां पे लगाना किस पे डिसाइड होगा कि जहां पे वो इंस्टॉल करने वाले वहां पे हवा की स्पीड क्या है। ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड दैट पॉइंट अगेन, द एंटायर पॉइंट। Wind turbines with capacity right from less than 1 kilowatt to about 7,000 kilowatt are commercially available. Depending on the wind velocity available at the site of installation, wind turbine with specific capacity is selected. Okay, we'll move on to the next point. Wind velocity is usually high on seashores and that environment is appropriate for installation of wind turbine. Generally हवा कहाँ पे ज्यादा अच्छी आती है? If you go on marine drive, मरीन ड्राइव पे बहुत अच्छी हवा आएगी, जुहू बीच पे जाओगे बहुत अच्छी हवा आएगी। सो जहां पे भी सी होता है, whenever there's a sea and sea shore, यानी सी का जो लैंड, वो लैंड का एरिया जहां जिसके बाजू में जस्ट सी शुरू होने वाला है। ओके, दैट्स नोन एज अ सी शोर। सो वहां पे जनरली हवा बहुत ज्यादा होगी एंड दैट एनवायरनमेंट इज अप्रोप्रिएट, वो सही है, अप्रोप्रिएट यानी अच्छा होना, सही होना फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ विंड टर्बाइन। वहां पे विंड टर्बाइन लगाओगे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि वहां पे हवा बहुत चलती रहती है। ओके, थर्ड पॉइंट, विंड एनर्जी इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स। ओके, क्यों क्लीन एनर्जी बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें अगेन कोई फ्यूल्स जल नहीं रहे, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्लीन एनर्जी बोल रहे हैं। ओके, हाउएवर द विंड वेलोसिटी नेसेसरी फॉर विंड एनर्जी जनरेशन इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। जितना स्पीड होना चाहिए विंड का वहां पे विंड टर्बाइन के ब्लेड्स को घुमाने के लिए, उतना हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोग ने साकिनाका में लगा दिया तो साकिनाका में अगर विंडमिल लगाओगे और उधर उतनी हवा ही नहीं आ रही है जिससे वो विंडमिल घूम सके, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं होने वाला है। सो पूरा पैसा वेस्ट होने वाला है, राइट? सो इसके वजह से, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, इन दैट सेंस यूज ऑफ विंड एनर्जी इज लिमिटेड। तो हर जगह पे तुम लोग विंड टर्बाइंस नहीं लगा सकते, जहां पे हवा अच्छी आती है वहीं पे लगा सकते हो। ओके, सो दीज आर द रीजंस व्हाई यूज ऑफ विंड एनर्जी इज वेरी लिमिटेड। We'll move on. So in the next chart they are basically telling you wind turbines of different capacity. Capacity यानी कितना इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर सकता है। तो सबसे छोटे वाले कौन से होंगे? सबसे छोटे वाले 2 किलोवाट्स के मिलते हैं। ओके, और इसका अगर तुम लोग हाइट देखो, ये इतना छोटा सा घर है, एक फ्लोर का घर यहाँ पे इतना छोटा दिखा है और ये कितना बड़ा है। सो ये बेसिकली 6-7 माले की बिल्डिंग जितना लंबा होगा। ओके, और ये ट्रीज के साइज से भी तुम लोग कंपेयर कर सकते हो। तो इतना छोटा जो विंडमिल होता है उसका कैपेसिटी कितना होता है? 2 किलोवाट्स। किलोवाट्स क्या है? बेसिकली पावर का यूनिट है। ओके, एंड इसका ब्लेड का लेंथ कितना है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा उसका एक एक ब्लेड होगा। उसके बाद विंड फार्म्स। विंड फार्म्स क्या होता है? जहां पे तुम लोग को पता है कि बहुत हवा आने वाली है तो तुम लोग बहुत सारे विंड टर्बाइंस बाजू बाजू में लगा दोगे और वहां पे विंड, इतनी ज्यादा विंड आती है को कंटिन्यूसली घूमते रहेगा और बहुत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, सो इसको बोलते हैं विंड फार्म। और विंड फार्म्स में तुम लोग बहुत बड़े विंड टर्बाइंस भी लगा सकते हो। सो अगर इतने बड़े साइज का तुम लोग ने लगा दिया, ये कितना है? इट्स ऑलमोस्ट 300 to 350 फीट। ओके, या फिर 92 मीटर यहाँ पे वो लोग ने हाइट भी दिया। सो अराउंड 92 मीटर्स का हाइट हो सकता है एक एक विंडमिल का इन अ विंड फार्म। ओके, इसका कैपेसिटी क्या है? 2000 किलोवाट्स एंड ब्लेड कितना लंबा होगा? 50 मीटर्स। तो यहाँ पे जितना ब्लेड का साइज है, जो ब्लेड का लेंथ है, उसका 10 टाइम्स भी नहीं, 50 टाइम्स लंबा इसका ब्लेड हो सकता है। एंड सिमिलरली लास्ट में आता है ऑफ शोर विंड टर्बाइन। ऑफ शोर यानी, शोर मैंने बोला राइट, शोर क्या होता है? सी के जस्ट सी को जस्ट टच करने वाला जो लैंड होता है उसको बोलेंगे शोर। ओके, सी शोर। ऑफ शोर मतलब शोर के बाहर। शोर के बाहर क्या आएगा? सी आ जाएगा। सो इफ यू सी, यहाँ पे एक छोटा सा बोट बना है और यहाँ पे एक बड़ा सा विंडमिल लगा है। सो बहुत सारे विंडमिल सी में भी लगाते हैं, सी के अंदर। क्यों? क्योंकि सी के अंदर तुम लोग को पता है सी के आजू बाजू बहुत ज्यादा हवा आने वाली, और क्योंकि तुम लोग सी के अंदर लगा रहे हो तो लैंड भी वेस्ट नहीं हो रहा है। सो दीज आर ऑफ शोर विंड टर्बाइंस एंड ये कितने कैपेसिटी के हो सकते हैं? 6000 to 7000 किलोवाट्स। और इसका ब्लेड का लेंथ 100 मीटर, इट्स ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ अ किलोमीटर। ओके, सो इतना लंबा इसका ब्लेड्स हो सकता है। सो दीज आर बेसिकली विंड टर्बाइंस, अलग अलग साइज के, अलग अलग कैपेसिटी के, फिर कहाँ पे लगा सकते हैं। सो फॉर योर रेफरेंस आई हैव एडेड वन पिक्चर ऑफ अ विंड फार्म। ओके, सो इफ यू सी, यहाँ पे बहुत अच्छा विंड आता होगा इसलिए वो लोग ने बहुत सारे विंड टर्बाइंस बाजू बाजू में लगा दिया है। सो जब भी जोरदार विंड्स चलेगी, सारे के सारे टर्बाइंस फास्ट घूमेंगे एंड दे कलेक्ट अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
Okay, so this is a photo of wind farm. That's it for today. The two words we learned were shaft. Shaft मतलब as I said a long narrow part of a machine, एक rod की तरह होगा. And offshore. Offshore मतलब situated at sea, some distance from the shore. So वो जो land है, land से थोड़ा दूर sea के अंदर होगा, तब हम उसको बोलेंगे offshore. Okay. And as always, don't forget to make sentences. जब तुम लोग ये copy कर रहे हो इन दो words के meanings, also make sentences using these words in your words, in these words in your sentences. Okay, for example, अगर offshore का तुम लोग ने meaning लिख दिया, one sentence you could make is we had a party on a boat which was situated offshore from Mumbai city. So that's one example how I can use this new word which I learned in a sentence. अगर तुम लोग को ये practice होगा, then you all can use very good words in your answers also. So make sure you are writing sentences while writing the meanings of these words. Okay, that's it for today. Hope you guys understood whatever we discussed today, and see you guys in the next video. Okay, see you. Bye.